Hello dear students, today I am going to continue chapter 2 of Organization of Commerce and Management, Standard 11 Commerce, session number 3 of Business Services 1. In last two sessions, I started the Business Services 1, that is chapter 1, and we discussed and I gave the basic information in first session related to the insurance, also some of the services. Without the services, business will not run in a proper way. So we can say in first session, and I already completed that insurance policy, that is insurance policy, then premiums, right, contract agreement, then we discussed that principles of the insurance with four different points. Both the parties, insurer and insuree, both have to follow that principles. And in next session I started the types of the insurance, the main types, life and general. In discussion we already I already gave the information about the sub points, right? I think 6 or 7 different sub points were there under life and one general insurance. Also some other general insurances were discussed and the list was there, and keep in mind the mediclaim. So now let's move to the third session. Today I'm going to continue with that insurance, and with the help of this one you can easily understand कि why there is a need arise of the privatization. कोई भी चीज़ होती है, अगर कोई भी सेक्टर ले लो तो उसमें अकेला पब्लिक सेक्टर नहीं है, सिवाय के 3 सेक्टर को निकाल के, राइट? वो आपको मालूम है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, 10th में आप सीख चुके हैं और वो भी हमारे सिलेबस में है, इकोनॉमिक्स में और ओसीएम में भी है, तो उसमें भी हम देख लेंगे कि वो 3 सेक्टर कौन से। लेकिन अभी के लिए याद रखो कि प्राइवेटाइजेशन इंश्योरेंस में क्यों ज़रूरत पड़ी। Okay, everywhere nowadays, everywhere privatization is there because government has lots of opportunities. Government is always trying to provide the best product, but they are always in need of some shortage of the money, so they are always in need of the finance. So that's why some of the privatization required, and some of the time they are in need of that support from the private sector. So here it was the first step in before 40 50 60 I can say 70 or 80 years before આપણે કદાચ વાત કરીએ. So maybe privatization was not new because it is the oldest one, but there is a need arise. So why? Here it is. Insurance was, our point is privatization of insurance. For a short note, insurance was initiated by private sector in India. तो इंश्योरेंस की शुरुआत जो हुई थी, इट वॉज स्टार्टेड अंडर द प्राइवेट सेक्टर. और कोई भी बिजनेस है प्राइवेट से ही शुरू होता है ना. मैं शॉप खोलूँ उसके बाद में पब्लिक सेक्टर में जाऊँ, वो तो बहुत साल लग जाएंगे ना, राइट? तो उसके लिए समय लगता है. सो प्राइवेट के तौर पे सब कुछ खुलता है. हमारे सिलेबस में 5th 6th चैप्टर में हम देखेंगे. तो एज इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, यू नो दैट वन, 9th स्टैंडर्ड में भी सीख गए. तो ब्रिटिश कॉलोनी थे हम. मैनी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज स्टार्टेड इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया. सो दैट टाइम 60s 70s 80s तक भी हमने उसको चलाया. एक्चुअली 50s और 60s तक तो ब्रिटिशर्स ही अपनी जो कंपनियां से वहाँ रखे थे, उससे ही शुरुआत हुई थी. सो इजीली वी कैन से कि ब्रिटिश कॉलोनी स्टार्टेड दैट डिफरेंट फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज एंटर्ड इन आवर कंट्री एंड द बिजनेस वाज अंडर दैट ब्रिटिशर्स, दैट इंश्योरेंस कंपनीज, एज दे वर blamed for practices illegitimate business practice. See, it is the information with us. Okay, from 60s 70s they were under the particular type of the companies, यानी कि वो इस बिजनेस में ऑलरेडी थे और उनके ऊपर एक ब्लेम लगा फॉर प्रैक्टिसिंग इलिजिटिमेट बिजनेस प्रैक्टिसेस, जो कि हालांकि सही में या ऊपरों हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन इट वॉज देयर कि इलिजिटिमेट बिजनेस प्रैक्टिसेस वर डन बाय देम. सो बिकॉज ऑफ दैट इलिजिटिमेट बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी कि प्रॉपर वो किसी बिजनेस के जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशन को, इंश्योरेंस कंपनीज के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते थे. सो ऑन 19th January 1956 through a ordinance, life insurance business was nationalized and the Life Insurance Corporation of India was set up. ये ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस टाइम पे जो भी गवर्नमेंट थी उनको ऐसा लगा कि वॉट एवर द प्रैक्टिसिंग इन द इंश्योरेंस बिजनेसेस आर देयर, दैट इज इलिजिटिमेट. वी कैन से इट वाज नॉट अंडर द प्रॉपर वे. सो दैट्स वाई कीप इन माइंड द डेट 19th January, याद रहे ऐसी ही है. 1956 में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ. ऑर्डिनेंस वैसे ही पास नहीं होता है, उसमें हमें रूलिंग पार्टी और अपोजिशन जो है उन दोनों की सहमति चाहिए, उसके बाद ही ऑर्डिनेंस पास होता है. और वो ऑर्डिनेंस पास हुआ, उसमें डिसाइड हुआ कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो है उसको नेशनलाइज्ड किया जाए, बिकॉज एवरी बिजनेस स्टार्टेड विद द प्राइवेट सेक्टर और विद द प्राइवेटाइजेशन. सोल प्रोप्राइटरशिप ले लो एंड खुद अपने आप को बिजनेस स्टार्ट करो, उसके बाद वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ ग्रो करके आगे जाएगा. लेकिन इंश्योरेंस वॉज स्टार्टेड इनिशियली बाय द ब्रिटिशर्स अंडर द प्राइवेट सेक्टर. नाउ आफ्टर, नाउ मीन्स दिस डेट,
इस दिस पीरियड 1956 में डिसाइड हुआ कि ये बिजनेस आएगा नेशनलाइज में, और वहाँ पर शुरुआत हुई लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। दैट इज द जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, योगक्षेम वहाम्यम, यह आता है आपके जो भी एडवर्टीजमेंट है इसमें आता है LIC। तो उसकी शुरुआत हो चुकी 1956 में, एंड थस वी कैन से द मोनोपोली ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। तो आपको मालूम है मोनोपोली क्या है? वन साइडेड, वन पर्सन और वन पर्टिकुलर। यहाँ पर मोनोपोली लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की LIC की थी कि LIC खुद ही ये सब इंश्योरेंस पॉलिसी लेता और उसका जो भी बेनिफिट्स है वो गवर्नमेंट के थ्रू वो पब्लिक को देता। तो एक मोनोपोली हो गई, यानी ओनली वन सेलर एंड लॉट्स ऑफ बायर्स, यानी जो भी चीज़ आप बेचते हो, ये एक इकोनॉमिकल वर्ड है मोनोपोली। आपका खुद का इजारा होता है, आपकी खुद को मोनोपोली होती है, आपके जैसा और कोई कुछ भी नहीं करता है, इन द सेंस ऑफ सर्विसेज, इन द सेंस ऑफ गुड्स, इन द सेंस ऑफ प्रोडक्शन, कुछ भी समझ लो। तो लाइफ इंश्योरेंस की एक मोनोपोली हो गई, ये याद रखो। देन आफ्टर, ये तो बात हुई लाइफ इंश्योरेंस की। जनरल इंश्योरेंस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। ये अपने जनरल इंश्योरेंस के भी हमने पॉइंट देखे, 3 पार्ट्स, दैट इज गुड्स, उसके बाद फायर और उसके बाद अदर जनरल इंश्योरेंस। तो ये सब की शुरुआत भी हो गई। तो जनरल इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया, उसकी भी शुरुआत उन्होंने की थी। Periodical controls were imposed on general insurance as well as, and it has continued after independence. So उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल था गवर्नमेंट का, और पीरियडिकल्स यानी जब जरूरत पड़ी तब तब उनके ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग पावर डाल दिया, मिस कंट्रोलिंग रखती थी गवर्नमेंट ये जनरल इंश्योरेंस के ऊपर भी। और इट वाज आल्सो कंटिन्यू आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1947 के बाद भी ये कंटिन्यू रहा। बट ऑन द 1 जनवरी 1973, यानी कि 56 के कई सालों के बाद हम देखना चाहे तो आई थिंक 17-18 साल के बाद, द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वाज नेशनलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस दैट नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1972। यहाँ कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ था, याद रखना। यहाँ पर एक पर्टिकुलरली एक्ट ही पास हो गया, दैट वाज रिलेटेड टू जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 को। इसके अंदर 1972 जो जनरल इंश्योरेंस का एक्ट हुआ, उसके अंदर 1 जनवरी 1973 में वो जनरल इंश्योरेंस भी हो गया नेशनलाइज्ड। तो देख लो, दोनों जो लाइफ इंश्योरेंस था और जनरल इंश्योरेंस था, दोनों पहले जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर में चलता था, प्राइवेट कोई एक यूनिट के अंदर चलता था, उसको गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया। सो ये दोनों हुआ। अभी का मार्केट देखो तो अभी फिर से वो प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, और आपको मालूम है कि 1991 के बाद राइट वो पॉलिसीज आई नए, राइट वी अलाउ लिबरलाइजेशन, यानी गवर्नमेंट अलाउ टू एंटर ऑल द कंपनीज इन आवर कंट्री। उसके बाद फिर से कई कंपनियाँ आई, अभी भी मोर देन 25 कंपनीज आर अवेलेबल राइट फॉर द इंश्योरेंस, दे आर प्रोवाइडिंग बोथ लाइफ एंड जनरल, और सभी को अब इजीली लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन अभी भी आज के तारीख में जो कंट्रोलिंग पावर है वो गवर्नमेंट ने अपने आप रखा, हाथ में रखा है। फिर भी 49% जो आउटसाइड ऑफ दी इन्वेस्टमेंट होता है वो अलाउ है, वो देखेंगे आगे, उसका भी डिटेल नहीं देखते। लेकिन सिंपल की चीज़ है कि दोनों सेक्टर में नेशनलाइजेशन हो गया। नाउ लेट्स मूव टू दी लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू दिस वन, टू एनालाइज एंड अप्रेज द वर्किंग ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। यानी जो वो काम कर रहे थे वो काम का अप्रेजल जो है, उसका एनालिसिस जो है इंश्योरेंस सेक्टर का, वो कौन देखे, उसने क्या काम किया, उसका आउटपुट क्या है, बढ़ा कम हुआ वॉट एवर राइट, सो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, एनालिसिस करने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर का a committee was appointed। एक कमेटी का अपॉइंटमेंट हुआ, and it recommended, that committee recommended the joint business of foreign insurance company with Indian counterparts। तो ये अपॉइंटमेंट कमेटी का ये था, और कमेटी की ऐसी सलाह थी उस टाइम पे कि उनका रिकमेंडेशन था कि जॉइंट बिजनेस होना चाहिए फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी विथ इंडियन काउंटर पार्ट्स, राइट, जो भी है वो यहाँ के इंडिया के। सो ये इंडियन काउंटर पार्ट्स ये है जो यहाँ के जो छोटे छोटे इंश्योरेंस कंपनी की जो बात हो वो उनके साथ जुड़ जाए और उनके साथ कोलाब्रेशन में काम करे। और कोलाब्रेशन की कंपनी कई है, नाम आपको मैं बताता हूँ, जैसे बजाज एलियांज है, राइट, कई लिस्ट में बहुत लंबा लिस्ट है, राइट, टाटा AIA है, पहला टाटा AIG था, राइट, इफको टोक्यो है, LIC तो एक सेपरेट है, राइट, बिरला सन लाइफ है, ओके, ICICI प्रूडेंशियल है, ICICI लोम्बार्ड है, कई लिस्ट बहुत लंबा है देश में। लेकिन आपको मालूम है ये कोलाब्रेशन इंडियन काउंटर पार्ट्स के साथ हुआ। सो इंश्योरेंस रेगुलेटरी
यानी इंश्योरेंस को रेगुलेशन में रखे एंड ऑल्सो उसका डेवलपमेंट करे। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इरडा वॉज सेटअप इन 1999 टू सपोर्ट इट। तो ये जो रिकमेंडेशन था वो सक्सेस हुआ। जो फॉरेन कंपनीज थी इंश्योरेंस कंपनीज वो इंडियन काउंटर पार्ट्स के साथ जुड़ गई, जॉइंट सेक्टर हो गया और उसकी वजह से कोई एक 1999 में इरडा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इरडा था राइट, लेकिन वो रेगुलेटरी काम नहीं कर रहा था। इरडा नाम दिया गया, उससे पहले गवर्नमेंट अपनी तरह से रेगुलेशन करता था। लेकिन कीप इन माइंड द फुल फॉर्म ऑफ इरडा, राइट। इरडा यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट, अ यूनिट ऑफ गवर्नमेंट, वो स्टार्टेड इन 1999। सो डियर स्टूडेंट, ये बात हुई पर्टिकुलरली एक पॉइंट की जो प्राइवेटाइजेशन हमारे इंश्योरेंस का हुआ। नाउ लेट्स मूव टू इरडा। ये शॉर्ट नोट है। ये इरडा क्या है, उसका काम क्या है देख लेते हैं। वंस अगेन, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इंश्योरेंस को जो भी सेक्टर है पूरे सेक्टर को रेगुलेट करता है और उसको डेवलपमेंट करने का काम करता है। So this is a supreme autonomous and legal institution which manages the regulatory and development activities in the field of insurance. तो उनका खुद का एक ऑटोनॉमस शुरू हुआ। सो फिर से एक बार कि ये ऑटोनॉमस क्या है, स्वयं अपने आप को करते थे काम, राइट। दे आर टोटली वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, दे आर नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, स्वयं जिसको बोलते हैं। तो सुप्रीम ऑटोनॉमस, उनके पास हाईएस्ट अथॉरिटी थी एंड लीगल इंस्टीट्यूशन, वो कायदे से काम करते थे। वो क्या मैनेज करते थे, विच मैनेजेस द रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का जो फील्ड था वो फील्ड में उसके ऊपर, वो फील्ड के ऊपर कुछ कंट्रोल रखने थे, उनको उनका विकास भी करना था। इसके लिए गवर्नमेंट की हेल्प से एक ऑथोराइज्ड पर्टिकुलर अथॉरिटी शुरू हुई जो ऑटोनॉमसली खुद ही काम करती थी, इंस्टीट्यूशन जिसको हम बोलते हैं। IRDA Act of 1999 has opened the doors of insurance sector to the private insurance companies and also to foreign insurance companies to the extent of 26%. विच वॉज रेज टू 49% इन 2015। अभी भी इसमें कई चेंजेस हो चुके हैं, राइट। 74% भी हम यहाँ अलाउ करते हैं, राइट, लेकिन वो पूरा गवर्नमेंट के सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए। तो ये सिलेबस 2016 में फ्रेम हुआ था, अब 2021 में नया सिलेबस आने वाला था, राइट। बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 में भी द चेंजेस आर नॉट डन, लेकिन फिर भी आप याद रखो कि ये जो डोर्स ओपन हुए इंश्योरेंस कंपनी के अंडर इरडा एक्ट में, कि इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर जो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में जो सेक्टर था उसके अलावा जो प्राइवेटली एंटर होना चाहते हैं वो भी हो सकते हैं और जो फॉरेन कंपनी से वो भी हो सकती है, लेकिन उनका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, 26%। यानी जो 100 रुपीज़ इन्वेस्ट हुए हैं गवर्नमेंट के उसमें से 26% ही बाहर के होने चाहिए। फिर वो रेज्ड होगा 49% से, यानी कि वो उसको गवर्नमेंट ने कर दिया 49%, यानी 49% तक आप ये कोई इंश्योरेंस कंपनी इंडियन कंपनीज के साथ जुड़कर काम कर सकते हो। फॉरेन की बात है और प्राइवेट सेक्टर की बात है। ये 15 में चेंजेस हुआ, ये याद रखो। अभी भी 74% की इंफॉर्मेशन है, यहाँ ऑफिशियली डेटा नहीं दिया है, यानी आपको पेपर में ये मीन्स एग्जाम में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में यहाँ तक ही रखो। सो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द इंडियन इंश्योरेंस कंपनी अप टू 49%। इसका आउटपुट ऐसा होता है कि बाहर के देश की कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हमारी कंट्री की कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में 49%, 49% इन्वेस्ट कर सकती है उनके नाम के साथ। वो तो डिपेंड करता है क्या कंपनी के रूल्स रेगुलेशन जो है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है, यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि अगर इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है जो गवर्नमेंट की है या फिर प्राइवेट है, उसमें फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है, वो 49% तक वो अपना हिस्सा ले सकती है उसमें। हियर इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इरडा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इरडा आर, ये ऑब्जेक्टिव्स याद रखो, इसकी वजह से कि इरडा क्यों एस्टैब्लिश हुआ। पहला वाला, पॉलिसी होल्डर्स गेट्स मोर चॉइस, क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन सिर्फ एक गवर्नमेंट का यूनिट, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, वो मोनोपोली थी, वो जो देते थे हमें लेना पड़ता था। यानी कि कुछ नया आए तो अच्छा ही था कि वी एट दैट टाइम एक्सेप्ट दैट वी LIC इंट्रोड्यूस द न्यू पॉलिसी एंड वी आर द पार्ट ऑफ दैट LIC, बट कुछ नया चाहिए तो उसके लिए कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी एंटर करना जरूरी था। तो उसी की वजह से पॉलिसी होल्डर्स को कुछ चॉइस मिले, इसीलिए ये डिसीजन लिया गया। दूसरा वाला, प्रमोट हेल्थी कंपटीशन अमॉन्ग द वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज
विच कैन इम्प्रूव द सर्विसेज विद अ लोअर प्रीमियम। समटाइम इट हैपन्स, एक ही बंदा होता है पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, आपके साथ कोई भी ट्रेड करता है, आपके साथ कोई भी बिजनेस करता है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो जो देता है हमें लेना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद जो है वही हम लेंगे। और तीसरी बात कि वो कुछ नया शायद ना भी करेगा, लेकिन अगर आपके पास कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया तो यू हैव टू प्रोवाइड द बेटर सर्विसेज। So to give the good thing, you want to provide the services, you want to improve the services। आपकी सर्विसेज अच्छी है लेकिन उसमें कुछ इम्प्रोमाइजेशन लाना है, और आपका जो प्रीमियम है शायद ज़्यादा है, तो हर कोई वो पे करता है, नो डाउट। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कंपटीशन आ जाएगी कि तो सर्विस भी अच्छी मिलेगी और प्रीमियम भी कम हो जाएंगे। तो हेल्दी कंपटीशन ज़रूरी है। हेल्दी कंपटीशन का मतलब हम देखेंगे आगे, लेकिन सिंपल चीज़ है कि किसी को काटने के लिए हम प्राइस नहीं कम कर रहे हैं, राइट, लेकिन अच्छी चीज़ प्रोवाइड करने के लिए हम प्राइस कम कर रहे हैं। वो एक पर्टिकुलर टाइप का हेल्दी कंपटीशन है। तो इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, तभी आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, कोई भी, नॉट ओनली द इंश्योरेंस बट ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो। सो ये दो हुए उसके ऑब्जेक्टिव्स। इरडा के तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि मोबिलाइज मोर रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमी। इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का आवागमन होना चाहिए, मोबिलाइजेशन होना चाहिए, राइट। अगर मोबिलाइजेशन नहीं होगा रिसोर्सेज का तो एज इट इज़ जो भी है हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो इरडा स्टार्टेड इन 1999 टू प्रूव दैट इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर, दे आर नॉट ओनली फॉर द अर्निंग, दे आर द सर्विस प्रोवाइडर ऑल्सो, दे आर ऑलवेज गिविंग बेस्ट टू दी पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर्स। तो वो इकोनॉमी जो है उसको भी आगे ले जाना था ना, बिकॉज सिर्फ इंश्योरेंस का काम आपको जो भी लाइफ या जनरल इंश्योरेंस का है नहीं, जो भी आपका प्रीमियम्स इकट्ठा होता है उसको डेवलपमेंट के लिए कहीं लगाया जाता है, इकोनॉमी को हम आगे ले जाते हैं। फोर्थ वन, टू ब्रिंग सेल्फ डिसिप्लिन अमॉन्ग द इंश्योरेंस कंपनीज। इरडा का ये भी ऑब्जेक्टिव अच्छा है कि इंश्योरेंस कंपनी जो अपने आप से प्रॉफिट अर्न करती है, देख लो प्रॉफिट अर्निंग यहाँ है नहीं, लेकिन सी प्राइवेट सेक्टर है तो प्रॉफिट अर्निंग थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। सो जो सेल्फ डिसिप्लिन थी उसके पहले भी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अर्निंग पर्पज़ के हिसाब से सब खुलने लगा, तो सेल्फ डिसिप्लिन वॉज नॉट मेंटेन। ઓકે, અને આપણે કહેવાય ને કે એમને જે ફાવે મન ફાવે એટલા પૈસા લેતા હતા, સો એવું થતું હતું, સમટાઈમ્સ ઇટ વોઝ હેપન, બટ સે it's a part of the business, but self discipline was required. So IRDA started and then after that self discipline was also maintained. Fifth and last one, to create a mechanism फॉर द कंप्लेंट रिड्रेसल एक्सेट्रा। सो एक ऐसे सिस्टम बना दी, एक मेकेनाइजेशन ऐसा खड़ा करना था कि यांत्रिकरण जिसको हम बोलते हैं, यही इन द सेंस ऑफ द वन डिजिटल वे नाउअडेज, बिफोर डिजिटल वे कंप्यूटर्स वेर देयर एंड बिफोर दैट वन અત્યારે તમે જોવા જાઓ તો મે બી મોબાઈલ ફોન્સ એન્ડ અધર થિંગ્સ, બિફોર દેટ વન લેપટોપ્સ એન્ડ બિફોર દેટ વન કમ્પ્યુટર્સ વેર દેयर। સો IRDA want to create that type of the mechanism that may be redressal of the complaints of the different insurance policy holder within a short time period। यानी जो भी उनकी कंप्लेन है उसका निवारण होना चाहिए, जो भी फरियाद होती है उसको हमें सॉल्व करना चाहिए, तो उसके लिए एक मेकेनाइजेशन होना जरूरी था। सो वो भी IRDA ने कंप्लीट किया। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव के साथ 1999 में IRDA ने अपना काम शुरू किया। अभी इसमें कई चेंजेस आ गए, अभी देखने जाए तो कई सर्विसेज भी ऐड हुई है, अभी तो कई नए एक्ट में उसमें कई नए रिजोल्यूशंस भी पास हुए, तो उसको भी हमें ध्यान पर लेना पड़े, उसे भी हमें इंश्योरेंस कॉर्पोरेट्स में डालना पड़े। That is the thing. So this is the information of the insurance, that is the privatization and then after the IRDA, right? Both are for the short note and for the 2 mark question। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट जो पास हुआ, यानी IRDA में जो 1999 में एक्ट हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कितने परसेंटेजेस अलाउ है, नाउअडेज क्या है हो रहा है उसकी सिचुएशन, वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन उसका क्वेश्चन हालांकि नहीं आता है कि एट प्रेजेंट क्या हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्राइवेटाइजेशन और IRDA की। नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस द इंश्योरेंस इन डिटेल एंड ऑल्सो टुडे द information that is related to the insurance privatization and IRDA. So here our first service is completed. Still we have 3 services in this chapter and this chapter वेटेज थ्रू आउट हम देखना चाहे तो 10 मार्क का वेटेज है, वैसे 8 मार्क का है, लेकिन 100 मार्क के हिसाब से देखना जाए तो ये 10 मार्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ जो सर्विसेज है उसकी सेकंड सर्विस में हम जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी सर्विस नंबर 2, पोस्टल सर्विसेज। अभी आप तो एक ऐसी एज पर हो कि आपने कभी इस सर्विस का यूज़ ही नहीं किया होगा और शायद आप करोगे भी नहीं, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सर्विसेज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि अभी तक हमने इस सर्विस का यूज़ क्यों नहीं किया। ओके, एंड यू विल
you will get the different type of the information, right, through this postal services. बिकॉज अभी ये सर्विस को किसी ना किसी तरह कॉर्नर किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट का एक ऐसा यूनिट है ये कि पूरी इंडिया में इसकी प्रॉपर्टी देखे तो करोड़ों रुपीस की प्रॉपर्टी ये पोस्टल डिपार्टमेंट के पास है, क्योंकि उनके पास जगह ही इतनी है। क्योंकि पहले जब भी कुछ भी कम्युनिकेशन करना था, राइट, इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी थी जो रिटर्न फॉर्म में थी, वो इसी की वजह से होती थी। तो गवर्नमेंट इसको ज़्यादा से ज़्यादा फंड देता था और दे established lots of different postal offices और पोस्ट ऑफिसेस इन ऑल ओवर इंडिया। अभी मैं आपको बताने चाह रहा हूँ जो ऑफिशियल डेटा है, वो जब ये पैराग्राफ चलेगा तब आपको मालूम पड़ेगा। शायद उसमें किसी ना किसी तरह रिडक्शन हुआ है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट न्यू सर्विसेज, आपको मालूम है टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो ये सर्विस कहीं ना कहीं पीछे रह गई है। इसीलिए वजह से जो भी नंबर्स मैं दे रहा हूँ उसमें कई रिडक्शन हो चुके हैं, फिर भी ये सर्विस अभी भी टॉप लिस्ट में होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टल सर्विसेज। आपने टपाल खातू कहिए, राइट, लेट्स सी। पोस्टल सर्विसेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिटर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो जो भी आप लिखित चीज़ किसी को पास ऑन करना चाहते हो, और इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन, दिस इज़ द बेस्ट सर्विस, एंड दिस सर्विस प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल थ्रू आउट द पास्ट सो मैनी ईयर्स। प्लेड, हाँ, ये इस सर्विस ने बहुत अच्छा रोल निभाया है ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करने में, जो लिखित फॉर्म में थी, राइट, और कम्युनिकेशन के लिए। इट इज़ एसेंशियल टू पास ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पीडीली एंड विदाउट इंटरप्शन। So if you are in field of army, if you are in field of business, if you are there in one society, you have to pass on some of the information to others, right? आपको किसी को information देनी है from one place to another place, और वो भी जल्दी होनी चाहिए और without any type of the interruption। कोई भी बीच में interruption नहीं होना चाहिए और सामने वाले को information मिलनी चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना, कि कोई भी इंटरप्शन के बगैर आपका लिखा हुआ खत सामने वाले पार्टी को मिल जाता है। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप सामने वाले तक इंफॉर्मेशन लिखित में पहुंचा सकते हो। सो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इट वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम, एंड विदाउट इंटरप्शन, राइट, 101% इट वाज डिफिकल्ट। सो द सेम सर्विस कैन बी अवेल्ड और अवेलेबल थ्रू प्राइवेट पोस्टल सर्विसेज, दैट इज वी कैन से कुरियर सर्विसेज और आंगड़िया टू। सो टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस यूनिट्स। तो ये जो सर्विसेज है, अभी आपको मालूम है कि पोस्टल सर्विसेज कम हो गई है, लेकिन ये सर्विसेज प्राइवेट पोस्टल सर्विस के थ्रू भी शुरू हुई थी 60s के बाद, राइट, जिसने हमने कई अलग अलग नाम भी दिए, राइट। 70s 80s में सब कुछ इसी तरह से होता है। कुरियर सर्विसेज जो थी, राइट, कुरियर आयु छे टपाल नहीं चाहिए, आप कुरियर बोलता था, राइट, हैंड टू हैंड, राइट, सिग्नेचर गिवन, देन आफ्टर, अभी तक चलता था 2005-10 तक चलता था ये सब, अभी भी चलता है ये कुरियर, ओके, लेकिन सर्विसेज थोड़ी कम हो गई है जो प्राइवेट पोस्टल सर्विसेज थी। उसके बाद देखा एक नाम दिया है आंगड़िया, ओके। आंगड़िया वैसे तो बरसों से चलता है, पोस्टल सर्विस शुरू हुई उससे पहले भी आंगड़िया थे, और उसको हमने स्पेशल नाम दिया है आंगड़िया, नॉट इट कनेक्टेड विद दिस आंगड़िया, राइट, बट सिंपल, दे आर गेटिंग मनी एंड प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द अदर पर्सन, राइट। उसकी एक बहुत लंबी कहानी है, हम यहाँ उसके पीछे टाइम नहीं दे सकते, लेकिन सिंपल ये आंगड़िया क्या करते थे, बिजनेस पर्पस के लिए इसका यूज़ होता था। गिव मनी टू देम दैट पर्सन एंड ही विल गिव दैट मनी टू द अनदर पर्सन, दोज हु आर लिविंग आउटसाइड ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, सबका सामने सामने। तो ये भी सर्विसेज थी, पोस्टल सर्विस ऐसा ही था, राइट। सो कैसे ये होता था काम, दिस सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल एंड बिजनेस यूनिट्स। So the Indian Postal Department has been providing information and communication services for more than 150 years. अगर हम बात करें कि हम जब इंडिपेंडेंट नहीं थे तब भी ये सर्विस चल रही थी, अभी भी ये सर्विस चल रही है। तो हमारा जो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है उसका पूरा नाम है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, कीप इन माइंड। इंडियन पोस्ट बोलते हैं, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट बोलते हैं। वो ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की सर्विसेज लगातार 150 साल से हमें प्रोवाइड करती है। पोस्टल डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज अदर देन जस्ट पोस्टल सर्विसेज लाइक मनी ऑर्डर, acceptance of various forms of deposits through small saving plans, postal life insurance and also रूरल इंश्योरेंस स्कीम्स। तो ये एक लिस्ट है जो पोस्टल सर्विसेज के अलावा ये पोस्टल डिपार्टमेंट हमें प्रोवाइड करता है, राइट। जो ये सर्विस पोस्टल की तो है ही सर्विसेज उनकी, उसके साथ
वो हमें मनी ऑर्डर भी सर्विस देता है। अब तो ये उसकी कुछ ज़रूरत ही नहीं है, राइट। अब तो सब डिजिटल पेमेंट हो गया है, यूपीआई आ गया है, सब ऑनलाइन हो जाता है, नेट बैंकिंग आ गया है, राइट। बैंकिंग में हम सब देखेंगे, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई विल ट्राई टू गिव यू। सो ये जो पर्टिकुलर सर्विस है मनी ऑर्डर, जब आप राखी भिजवाते थे, सिस्टर होती है तो सिस्टर अपने भाई को राखी भिजवाते, उसके सामने उसको पैसे पोस्टल सर्विसेज के थ्रू, ये मनी ऑर्डर के थ्रू मिलते थे, हैं। तो शायद आप इंग्लिश मीडियम में हो तो 10th स्टैंडर्ड में भी एक चैप्टर आया था इंग्लिश सब्जेक्ट में, उसमें भी आपने देखा था एक मनी ऑर्डर था। आई थिंक फर्स्ट और सेकंड चैप्टर था उसके हिसाब से, एक एक्टिविटी के बेस पर, तो वो भी आपने देखा होगा ना कि मनी ऑर्डर क्या है। वैसे भी ये हालांकि मालूम ही नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है, आपको इसकी डिटेल लेनी ज़रूरी है। सो कई बार मिले तो ये मनी ऑर्डर फॉर्म जब भी मिलेगा मैं भी आपको बताऊंगा, आप भी मिले तो आप भी देखना और मुझे भी शेयर करना। सो मनी ऑर्डर है, उसमें सब फिलअप करके दिया जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं और उसका कमीशन होता है 2 रुपये 5 रुपये, जो भी आप पैसे भेजते हो उसके में सर वो पोस्टल डिपार्टमेंट ले लेता है, तो उसके हिसाब से काम होता था। कई फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट आप पैसे भी भर सकते हैं, स्मॉल सेविंग प्लान भी थे, छोटे छोटे पर मंथ 50 रुपये 100 रुपये, उसके बाद वो बड़ा पर डेली पर हो गया, डेली 50 रुपये, सॉरी 100 रुपये सेविंग स्कीम थी। पर फिर उसके बाद पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो अभी भी चल रहा है, राइट, वो भी ले सकते हो। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देखी, ऐसी पोस्टल लाइफ पॉलिसी भी थी, एंड ऑल्सो इट इज़ रनिंग स्टिल। रूरल इंश्योरेंस स्कीम भी थी गाँव के लिए। तो ये पोस्टल डिपार्टमेंट ये सर्विसेज भी चलाता था विद द हेल्प ऑफ दैट डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट। तो उनके पास पोस्टल सर्विस तो थी, उसके बाद ये एक्स्ट्रा सर्विस थी, ये लिस्ट याद रखना, अंडरलाइन कर देना। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अदर सर्विसेज लाइक इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स एंड सर्विस ऑफ एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मैनी स्कीम्स। सो आपको म्यूचुअल फंड की इन्फॉर्मेशन होगी शायद, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, LIC का जो स्लोगन है ऐसा ही म्यूचुअल फंड का आता है, सही है, राइट। तो ये आपने देखी होगी एडवर्टीजमेंट। सो उसमें भी देखा है, लेकिन आपको एक्जैक्टली मालूम नहीं म्यूचुअल फंड्स क्या है, हम देखेंगे बाद में। लेकिन ये स्मॉल पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स है और कंपनीज आपको इन्वेस्ट करवाती है। सो ये भी इन्वेस्टमेंट पर्पज शेयर के डिपेंड होता है। ये पोस्टल डिपार्टमेंट भी करवाता है अभी, और एजेंट के हिसाब से भी काम करता है, गवर्नमेंट के एजेंट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गिविंग द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो तो उसकी फ़ीस पोस्टल डिपार्टमेंट के वहाँ एक्सेप्ट की जाती है, कमीशन के बेस पर होता है, राइट। उसकी फ़ीस 250 होती है अगर आपको जो एग्ज़ाम देनी है उसकी, तो पोस्टल डिपार्टमेंट में आप पे करने जाओ तो 265 यानी 15 रुपये एक स्टूडेंट के हिसाब से, और एक फॉर्म फिलअप होगा, वो कंटेस्टेंट जो भी होगा या फिर उसको हम बोलते हैं एप्लीकेंट होगा, उसका 15 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। जितने भी फॉर्म आएंगे उतने उसको कमीशन मिलेगा, और इसके हिसाब से ये चलता है ताकि ये डिपार्टमेंट चालू ही रहे, बंद ना हो जाए। सो गवर्नमेंट के हिसाब से वो एजेंट का काम करते हैं कमीशन बेस के ऊपर। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स सर्विसेज ऑफ पेइंग रिटायरमेंट पेंशन। तो गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ है रिटायरमेंट उनका हो जाता है, तो उसके बाद बैंक में अकाउंट खोलने की वजह एक ये है कि वहाँ आप FD भी करवा सकते हो। लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट को ये सर्विस दे चुकी है ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आपकी जो भी पेंशन है ना, ये सभी यहाँ से पोस्टल से भी आप विड्रॉ कर सकते हो, ताकि ये डिपार्टमेंट भी चला रहे। तो पोस्टल सर्विसेज जो है ना कि हालांकि पोस्टल डिपार्टमेंट के अंडर काम करती है और गवर्नमेंट के अंदर भी काम करती है, ये गवर्नमेंट का यूनिट है वैसे भी। तो ऐसी कई सर्विसेज है, रिटायरमेंट पेंशन भी इसके पैसे देती है। इट हैज़ गॉट लाइसेंस टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज एंड हैंस इट एक्ट एज बैंक टू इट्स कस्टमर। अगर आप उसके कस्टमर बनना चाहते हो बैंक में, जैसा आपका अकाउंट होता है, सो दिस इंडियन पोस्ट ऑल्सो गॉट द लाइसेंस लाइक बैंकिंग सेक्टर। लेकिन बैंकिंग सर्विसेज अलग चीज़ है, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको भी लाइसेंस दे रखा है, द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ द बैंकिंग। सो आप उसके कस्टमर बन सकते हैं और ये सर्विस भी दे सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको एक कार्ड भी मिलता है, उसका भी एक पर्टिकुलर ATM सेंटर है। So there are more than 1,50,000 post offices in India. Out of it, almost 90% are set up in rural area. तो सिटी एरिया में एक है, लेकिन गांव में एक सिटी है उसमें एक है, लेकिन उसके अंडर में जो भी तालुकास और जो भी रूरल एरिया साथ में आते हैं वो सब बहुत ज़्यादा है। तो 90% जो उसमें से 1,50,000 में है, यानी कि 1,35,000 बोला जाए, ये सब रूरल एरियाज में। तो बाकी की जो 15,000 रही वो ही सिटी एरिया में है। तो समझ लो कि एक सिटी में एक हो गए, तो ऐसे 15,000 सिटीज़ में है। सो ऐसा बोल सकते हो। सो ये पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा कि इसकी क्या ज़रूरत है इस लेवल पर। हाँ,
ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोस्टल कुछ काम ही नहीं है अभी। आप कुछ पोस्ट लिखते ही नहीं हो, कुछ कम्युनिकेशन करते हो लिखित में, लेकिन इसकी सर्विसेज बहुत मायने रखती है। ये सर्विस देखेंगे आपके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि ये सर्विसेज तो आज तक हमने देखी ही नहीं। तो सर्विसेज लो, उसका यूज़ करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंट सर्विसेज हियर। दिस प्रोवाइड्स फॉलोइंग सर्विसेज। ये सर्विसेज पोस्टल डिपार्टमेंट हमको प्रोवाइड करता है। पहली सर्विस है, हालांकि देखा जाए तो ये सर्विसेज हम पूरी तरह से देखें तो टोटल 17 सर्विसेज है, तो हम एक ही सेशन में उसे ले तो अच्छा है। तो पहली सर्विस का ये 3-4 सर्विसेज है, ये बहुत ज़रूरी है। तो पहली सर्विस है जर्नल और पोस्टल, उसके बाद रजिस्टर पोस्ट, उसके बाद पार्सल और स्पीड पोस्ट पार्सल। मेरा टारगेट था कि पूरी सर्विसेज साथ में लूँ, तो आई विल कंटिन्यू विद दी पर्टिकुलर सर्विस इन नेक्स्ट सेशन। तो अभी तक के लिए याद रखो कि ये जो 4 सर्विसेज है ये शुरुआती सर्विसेज है, उसके बाद कई सर्विसेज इसमें ऐड हुई और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज इसमें ऐड हो सकती है। सो आज इतना ही रखते हैं, सर्विसेज हम नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।